So you had an online class for leadership, right? पिछले हफ्ते में we will be covering this course क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, so we will be covering this course in both offline and online mode. Online mode will be continuation of what we covered in the today's offline mode. So unit 1 has been covered, right? I'll be giving you a brief snapshot of what has been covered in the offline class, and then we'll be beginning with second unit. Okay? Okay. What is leadership? And what is power and what is politics? बताओ. Your views, share. ये तो ये भी बंद हो गया. किसी को बताना कि काम कैसे हो रहा है, किसी अकॉर्डिंग कंडक्ट करना होता है बेसिकली. जैसे मैं लीडरशिप हूँ, 4-5 मेरे अंडर में वर्क कर रहे हैं तो उनको गाइड करना, बेसिकली गाइडेंस देना. गाइड एंड एक और वर्ड आया था, इन्फ्लुएंस, supervise, guide, motivate, influence. These are all the traits associated with leadership. What is power? Authority. And okay, with authority comes great. What, there's a famous quote, right? With authority comes great responsibility. Okay. क्या होती है authority and responsibility? Authority comes with the task assigned to you. Responsibility is what you do to that task. You are answerable to that task that is being assigned to you, accountable, right? Okay, this is power. Ki with power you can influence more people, right? Even if you do not have leadership qualities, you just have power. You can influence a lot of people because you are at power, right? Okay, what is politics? When individual preference come into the between organizational goals or. Okay. Or what is politics? Why do you think of politics in negative terms only? Positive भी तो सोच सकते हो. Right? क्या होती है politics? आ रहा है तुम लोगों के दिमाग में, बोलो. पावर के साथ पॉलिटिक्स भी आ जाती है. पॉलिटिक्स इज व्हेन यू आर एंगेजिंग विद पीपल, राइट? यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यू हैव डिफरेंट माइंडसेट. तो वहाँ पे पॉलिटिक्स इन द सेंस, नेगेटिव सेंस में अगर मैं पॉलिटिक्स को बोलूँ तो येस, यू हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट माइंडसेट, हेंस यू माइट बी इन क्लैशेस विद एवरीबडी in the organization or anywhere wherever you are in power and you are doing politics, right? तो politics हो गया यहाँ पे when you are using your power to your to your advantage and others disadvantage. ठीक है. positive politics भी हो सकती है where you are using power to do something good to others advantage. ठीक है. leadership के बहुत सारे there were various theories and models of leadership. क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, ऑनलाइन क्लास में? किस किस ने ऑनलाइन क्लास ली थी? अरे अभी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ली थी. ओके. सबसे पहले लेट अस डिस्कस व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लीडर. फीचर्स, एट्रीब्यूट्स. नेचर. व्हाट कंप्राइजेस ऑफ अ गुड लीडर? Discipline, honest. ओके. और बोलते जाओ. Motivated. Empathetic. Good communication skills. Experienced, skilled person. Ready to learn new things from the old experiences. समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी राइटिंग? डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट, एम्पैथेटिक, गुड कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट इज स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है. Ready to learn new things from the old experiences. Disciplined, honest, empathetic, good communication, competent. Competent is skill hai, knowledge hai, experience hai.
और पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, पीपल्स पर्सन, somebody who you want to lead you, कि this is a people's person, you want this to be a leader to lead you, right? Good communication के अंदर ही चलो negotiation भी लेते हैं। और विजनरी, ठीक है, ओके। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड लीडर, ठीक है। तुम में इनमें क्या क्या है वो लिखो, अब लिखो। These are few of the attributes of a good leader, right? I have asked you to write what all qualities do you have at present in you. इनमें से लिस्ट करो। दिख रही है, समझ में आ रही है? Authentic, inspirational, disciplined, honest, empathetic, communication which includes negotiation skills, competence which includes skill and knowledge, people's person, people want him or her to lead, visionary, strategic, visionary, creative, क्या क्या है, कितनी लिखी है? 9। इन 9 में से कितनी है लिखो। इनमें से जो हमारे इंडिविजुअल के अंदर है, यस, सारी है तो देन यू आर अ गुड लीडर। हाँ नहीं है। ओके, व्हाट इज बीइंग इंस्पिरेशनल? इंस्पिरेशनल क्या होता है? दैट यू आर सेटिंग एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स, यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल, ठीक है, ओके। जरूरी नहीं कि आपको पता हो कि यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल। देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू एंड यू डू नॉट इवन नो इट, क्योंकि हर कोई तो आपको आके नहीं बताता कि वी आर इंस्पायर्ड बाय यू बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट? आर यू इंस्पिरेशनल? ये कैसे पता लग सकता है आपको? जब बाकी लोग आपको आके बताएं, या फिर आपको पता लगे कि यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आपके बहुत सारे फॉलोअर्स दिख रहे हैं। समथिंग शुड बी देयर फॉर यू टू नो दैट यू आर इंस्पिरेशनल। खुद ही बोल दो कि मैं तो इंस्पिरेशनल हूँ, 2 फॉलोअर्स हैं, फिर कैसे होगा, राइट? यहाँ पे तो आपको कोई बताएगा कि आप मुझे इंस्पायर करते हो। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है? बीइंग जेन्युइन, राइट? ये नहीं कि मैं दिखा कुछ रही हूँ और हूँ कुछ, राइट? एट द मोमेंट आई एम गिविंग अ स्पीच विच आई डू नॉट फॉलो, दैट इज नॉट बीइंग ऑथेंटिक। ऑथेंटिक इज आई फॉलो माई वर्ड्स, ठीक है, ऑथेंटिक, आई एम जेन्युइन, ऑथेंटिक। डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन के अंदर क्या आता है? बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। डिसिप्लिन किस तरीके का डिसिप्लिन? टाइमली, क्या?
discipline to follow the rules and regulations, discipline to arrive at time, discipline on being punctual, disciplined to sit and talk to people about their problems, disciplined, honest, right? They speak truth, not 100% truth, but जितना required है उतना truth, ठीक है? जहाँ पे some additional butter is required वो भी करते हैं, right? But something that do not harm anybody else, that is being honesty, कि आप सच्चाई के साथ सारा काम करते हो. Empathetic, you are able to understand others' emotion without any judgment, right? You are able to understand them, you are able to put yourself in their shoes and understand their situation without any judgment, without passing any opinion. Empathetic. Communicator, good communicator, which includes having good communication and negotiation skills, right? You are able to influence people, you are able to communicate with facts and everything, right? So you are a good communicator. You are able to put your thoughts into words, you are a good communicator. You are able to negotiate things in your favor, you are a good communicator. Okay, so we do require such people also in placement cell. Okay, who are good communicators, who are able to influence people. Competent, सब कुछ है but काम ही नहीं करना आता, right? He won't be leading a good example. Okay, सब कुछ है. You are empathetic, you are a good communicator. आप बहुत लंबी लंबी बातें भी कर लेते हो, लोगों को आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है. But at the end वो बोलते हैं इसके साथ बैठ के टाइम वेस्ट होता है, right? बात करके बहुत अच्छा लगा बट टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकला. Okay, so you need to be competent also. Competent as in you need to have skills, knowledge to do the task. ये भी पता होना चाहिए कि टास्क मैं उसको दे रही हूँ तो वो कैसे होना है. एट दी एंड अगर करना है तो मैं ही कर पाऊँगी वो. एंड ये भी नहीं कि सारा टास्क अगर मुझे आता है तो मैंने खुद ने ही करना है. डेलीगेट. ओके, I know how to do it. If in case she does not do it, I'll do it. But I should also not do everything that is being assigned. I should delegate. People's person. It is some leaders are Mahatma Gandhi. People's person. Everybody used to love him. Right? सब पीछे पीछे चलने अपने आप लग जाते थे उनके. Okay. Visionary. They have some vision, ideas, set goals in their mind for themselves, for the team, for the organization, for the environment, for anything that is concerning to them. Okay? ठीक है, तो इसमें आपके अंदर क्या क्या लिख लिया, क्या क्या बिल्ड करना है वो भी लिख लेना. ठीक है. Next comes, there are some types of theories. वो तो हमने यहाँ पे भी करा है. Okay, Unit 1 के अंदर भी there are some types of theories. सबसे पहले theory आई great man theory. Leaders are born, not made. That there is a great person that will be born in some this particular घड़ी, उसी को लीडर बनाया जाएगा. उसके नक्षत्र ऐसे अलाइंड है कि वही लीडर है. Okay, leaders are born, not made. सबसे पहली थ्योरी, राइट? बहुत इसको क्रिटिसिज्म मिला कि नो, दिस इज नॉट द एक्चुअल केस. एवरीबडी इज बॉर्न विथ एवरी नथिंग, राइट? एवरीबडी इज बॉर्न विथ नो बेसिक स्किल्स और एनीथिंग. इट इज हाउ दे लर्न, हाउ दे अडेप्ट, हाउ दे गेन नॉलेज, दैट इज वॉट इज मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके, सबसे पहले कौन सी थ्योरी आ गई? ग्रेट मैन थ्योरी, which said that leaders are born, not made. कुछ लोग पैदा ही होते हैं जिनके पास वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सेकेंड थ्योरी, ट्रेट थ्योरी. ट्रेट, ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सेकेंड थ्योरी बोलती है कि जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है वो लीडर है, जिसके अंदर नहीं है वो नहीं है. ये थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी को
नेगेट करके बोलती है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी लर्नड. It is not that person is born with these characteristics. These characteristics can be learned if the person is willing to learn. ठीक है. अच्छा, learning, you people tell me, what is the appropriate age to learn all these things? Age bracket बता दो. No age. Okay, one answer is no. There is no limit to learning. Okay. Anybody else? Sub- It is better if we do, if we start doing it from the starting, like from our school days, not like in this area, the way we are doing everything in the morning lessons or in the modern chapters of students, we can, add little bit things, Right. honesty, this, all that. Okay. we can learn honesty or skills or something like मतलब हम इनिशियली उसको लर्न कर सकते हैं लेकिन एम्पैथेटिक बनना या डिसिप्लिन होना ये एज के साथ ही आता है बिना किसी जजमेंट के किसी को सुनना वो हम इतनी पेशेंटली नहीं कर सकते हैं. Okay. बिल्कुल ठीक. कि with experience you learn to when a person has also faced so much in their life that they are not in a position to judge others, right? तो वो तो experience के साथ ही आएगा. But we can introduce these concepts in the starting also. समझ ही नहीं आएगा उसको कि एम्पैथेटिक होता क्या है. बचपन में तुम पढ़ा दोगे कि बेटा उसको ढंग से सुनना है, उसकी बातों को जज नहीं करना है, बट उसको क्या ये बात समझ में आएगी? सो इट इज़ नॉट वेरी अर्ली. स्कूल में तो नहीं समझ में आएगा ये. कॉलेज में हो सकता है थोड़ा सा एक्सपोजर मिला है तो समझ में आने लगे, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करा है तो समझ में आने लगे. तो इसीलिए आई एम सेइंग कि जितनी ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप सोसाइटीज़ का पार्ट बनोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन करोगे, यू विल बी हैविंग दीज स्किल्स ऑटोमेटिकली. कॉलेजेस में सोसाइटीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कहीं कुछ कवर कर रही है. एनाक्टस थी, क्या कवर करती थी वो? लीडरशिप स्किल्स ही तो कवर करती थी, राइट? हाउ टू मेक अदर्स सस्टेनेबल, राइट? Few things we learn from our family. बिल्कुल. Things we learn from school. यस, Few things we learn from our students. बिल्कुल. So because just like honesty, discipline, we can learn from our family. यस, Authentic we also learn from our family. If someone belongs to a family where parents is strict on their words, so generally it comes from their roots को उसके आता है. फिर few things, for example, empathic and you're competent. These we can learn after the experiences. बिल्कुल. And the communications we can learn in school. People persons comes when you are past that age of experience, that when now you are a person. Now you have set of experience Yes. which can speak for you. And visionary comes after being having such with exposure. कि आपको आपने किसी स्कूल से ठीक है, because we have a vision in schooling कि भाई 12th करनी है, उसके बाद में we have to go for the graduation और एक particular field में जाना है. So this is also initially we started from schooling, but after visionary change, our visions change Right. as per the age factors. ठीक है. माई ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग दिस वॉज कि जितना जल्दी शुरू करो उतना बेटर है, बिकॉज विद टाइम योर ओपिनियंस आर रिजिड, बिकमिंग रिजिड, राइट? येस, यू कैन एनी टाइम चेंज दैट, बट चेंजिंग इज अ ह्यूज प्रोसेस. अनफ्रीजिंग, देन लर्निंग, देन रीफ्रीजिंग. वो अनफ्रीजिंग वाला पार्ट बहुत मुश्किल होता है, राइट? दैट चेंजिंग वॉट यू थिंक वॉज राइट, वो बहुत मुश्किल होता है, राइट? चाहे आप फैमिलीज़ में भी देख लेना, पहले जल्दी शादी हो जाती थी, क्या बोलते थे कि एडजस्टमेंट इजी हो जाता है, राइट? मान लो 22 साल में शादी हो जा रही है, एडजस्टमेंट इजी हो जाता था. क्यों? क्योंकि उनके इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ही नहीं होते थे. अब विद टाइम 35 की एज में लेट्स से शादी हो रही है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, देयर ओन सेट ऑफ एवरीथिंग, दैट इज़ राइट टू देम, दैट इज़ रॉन्ग टू देम. समबडी एल्स विल टेल नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे करना है, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन. उनके 35 साल क्या थे, बर्बाद थे. आर यू गेटिंग इट? तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर है. फ्यू थिंग्स एज ही सेड विल कम विद टाइम, फ्यू थिंग्स यू विल हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग, राइट? फ्यू थिंग्स विल कम एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज. ठीक, ओके.
तो ट्रेड थ्योरी के अंदर अगेन देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें एक ही बारी में सारी आ जाएंगी, नो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होंगी। इट इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर आप जिन लोगों के बीच बैठते उठते हो उन लोगों के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हेंस दे माइट कॉल यू अ लीडर अकॉर्डिंगली। थर्ड थ्योरी, ब्लेक एंड मोल्टन मैनेजरियल ग्रिड। ब्लेक, BLAKE, and Moulton, MOULTON, ब्लेक एंड मोल्टन मैनेजरियल ग्रिड। मैं इसी में लिख देती हूँ। Blake and Moulton managerial grid. This person said that there are, ये आपके SLM में भी होगा आई थिंक, है तो खोल लो, नहीं है तो सुन लो, that there are 5 ways in which a manager or a leader can handle people. 5 तरीके होते हैं, 5 टाइटल दे दिए गए हैं मैनेजर्स या फिर लीडर्स को। सबसे पहला इम्पॉवरिश्ड, बेकार, मतलब ना वो टास्क के लिए काम करता है ना वो लोगों के लिए काम करता है, मतलब ना उससे टास्क हो सकता है ना वो लोगों की उठने बैठने में इतना ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, ना ही इज़ अ रिलेशनशिप मैनेजर ना ही इज़ अ टास्क मैनेजर, दोनों ही नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज टास्क मैनेजमेंट, कि द पर्सन इज ओनली फोकसिंग ऑन द टास्क टू बी डन, काम करके दो बाकी मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम पार्टी वार्टी कहाँ जा रहे हो, आई एम नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप, डंडा लेके काम कराओ, टास्क मैनेजर, ठीक है। थर्ड, कंट्री क्लब, पार्टियाँ हो रही हैं रोज, फुल लिबर्टी गिवन टू पीपल, वेरी गुड ऑन रिलेशनशिप फ्रंट, बट टास्क कुछ हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो दिस इज द कंट्री क्लब स्टाइल ऑफ लीडरशिप, कि आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दी टास्क। नेक्स्ट कम्स मिडल ऑफ द रोड, थोड़ा थोड़ा दोनों, रिलेशनशिप को भी मैनेज कर लिया, रिलेशनशिप विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड टास्क को भी आधा मैनेज कर लिया, नॉट टू गुड ऑन एनी ऑफ द फ्रंट बट मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। एंड द लास्ट मोस्ट एफिशिएंट टीम मैनेजर, जहाँ पे आप लोगों की भी सुन रहे हो, रिलेशनशिप भी हैंडल कर रहे हो एंड काम भी कर रहे हो। 5 स्टाइल मैंने क्या बोले, सबसे पहला इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड के अंदर नो फोकस ऑन दी रिलेशनशिप, नो फोकस ऑन दी टास्क, ठीक है। नेक्स्ट, टास्क मैनेजर, ओनली फोकसिंग ऑन द टास्क नॉट फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप। नेक्स्ट, कंट्री क्लब, फोकसिंग ओनली ऑन द रिलेशनशिप्स नॉट ऑन द टास्क, रोज़ पार्टियाँ हो रही हैं, वो रोज़ आउटडोर घूमने जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, काम होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिडल ऑफ द रोड, कि हाँ बीच में है कहीं, दोनों थोड़ा थोड़ा हैंडल हो रहा है। एंड लास्ट वॉज द बेस्ट स्टाइल विच इज़ द टीम मैनेजमेंट स्टाइल, जहाँ पे दोनों ही चीज़ें फुल एक्सटेंट पे हो रही हैं। यस, कि टाइम स्पेसिफाई कर दिया है हर चीज़ का, ब्लेक एंड मोल्टन मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी इज, अभी आपको थ्योरीज पता नहीं ऑनलाइन करा दी हैं तो इधर ही देखते हैं। रॉबर्ट हाउस की पाथ गोल थ्योरी, ही सेड देयर आर 4 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, 4 स्टाइल होते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्टिव, टेलिंग व्हाट टू डू, ये तब होता है जब लोगों के पास स्किल नहीं है, जब लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि कब क्या कैसे करना है। सम पीपल वांट अदर्स टू लीड देम, कि मुझे काम बता दो क्या करना है,
तो दिस स्टाइल इज डायरेक्टिव लीडरशिप, आप डायरेक्शंस दे रहे हो. सेकेंड इज सपोर्टिव लीडरशिप, यू नो कि सामने वाला काम कर देगा, बस उसको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है. सपोर्टिव लीडरशिप. पार्टिसिपेटिव, थर्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, कि आप उनके सजेशंस को भी इंक्लूड कर रहे हो, सामने वाले के ओपिनियंस को भी इंक्लूड कर रहे हो. यहाँ पे तब होता है व्हेन यू कंसिडर योर टीम मेंबर्स एज इक्वल्स ऑफ यू, जब आपको पता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है, उनके अंदर सब कुछ है, एंड यू कंसिडर देम एज इक्वल. पार्टिसिपेट करवा के आप सारा काम करा रहे हो. एंड देन कम्स दी अचीवमेंट ओरिएंटेड. अचीवमेंट ओरिएंटेड के अंदर होता है कि यू वांट योर फॉलोअर्स टू इवन एक्सेल यू, कि आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करो. आई विल गिव यू मोर डिफिकल्ट टास्क्स बिकॉज आई हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटीज. अचीवमेंट ओरिएंटेड. ठीक है, ऐसी लीडरशिप जहाँ पे वो चाहता है कि आप उससे भी आगे जाओ, आप अपना बेस्ट अचीव करो. ठीक है, रॉबर्ट हाउस ने ये 4 चीज़ें बोली. क्या? डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड. ठीक है, ओके. देन कम्स, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये कवर हो चुका है. इवन आई डोंट नो कि रिकॉर्डेड ऑनलाइन वाली कहाँ जाती हैं. क्योंकि मैम मैंने लास्ट जब आपकी लीडरशिप की क्लास हुई है और मैंने स्पेशली ये चीज़ चेक करी थी कि मतलब वो रिकॉर्ड हो ही नहीं हुई है, तो आई लाइक ठीक है मैं उसको आराम से देख लूँगी, बट वो मेरे से जाएगी नहीं. ओके, तो वो रिकॉर्ड होकर कहाँ जा रही है? आई विल आस्क कि कहाँ जाती है, क्योंकि वी आर नॉट एबल ऑल्सो एबल टू सी कि कहाँ जा रही है. क्या मतलब? नहीं, ये वाली तो आती हैं, जो टीम्स पे होती हैं वो कहाँ जाती है, वील हैव टू सी दैट, फिगर आउट दैट. ओके, चलो ब्रीफ में सुन लो. दीज थ्योरीज आर दीज, अगर आप इनको कहीं और से भी पढ़ोगे, यू शुड हैव द क्रक्स. ये सब हो रखा है, देन गुड. ओके, फिर तो ठीक है. TNS कॉन्टिन्यूम, इसके अंदर होता है कि शुरुआत में देयर इज अ कॉन्टिन्यूम लाइक दिस, राइट? कि देर आर 7 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप TNS कॉन्टिन्यूम के अंदर. शुरुआत में मैनेजर इज हैंडलिंग एवरीथिंग, राइट? मैनेजर बोल रहा है कि ये काम करना है, ऐसे करना है. उसके बाद थोड़ा सा कम किया उसने, बीच में लेके आए जहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है, एंड देन एट द एंड सिर्फ और सिर्फ सबॉर्डिनेट ही सब कुछ अपने आप कर रहा है. ठीक है, तो देयर इज अ कॉन्टिन्यूम. अगर ये पढ़ा हुआ है तो ये भी इसके 7 टाइटल्स होते हैं, राइट? फर्स्ट टाइटल इज मैनेजर मेक्स डिसीजंस एंड अनाउंसेस. मैनेजर ने डिसीजन बनाया और अनाउंस कर दिया कि इसको कंप्लाई करो, फॉलो करो. सेकेंड इज मैनेजर सेल्स द डिसीजंस. सेल्स का मतलब है कि थोड़ा वो बोलता है कि ये डिसीजन इसलिए अच्छा है, इसके ये आउटकम्स निकलेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में ये करोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपका CV भी इन्हांस होगा, यू शुड गो विद दिस स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ही इज सेलिंग द डिसीजन. ठीक है, उस डिसीजन के पॉजिटिव्स गिनवा के सेल कर रहा है डिसीजन को. थर्ड इज मैनेजर प्रेजेंट्स द आइडियाज एंड इनवाइट्स सजेशंस. थोड़ा सा सबॉर्डिनेट का रोल और बढ़ गया, राइट? आइडिया प्रेजेंट कर दिया एंड इनवाइटिंग द सजेशंस. फोर्थ, मैनेजर प्रेजेंट्स टेंटेटिव डिसीजन विच इज सब्जेक्ट टू चेंज बाय द सबॉर्डिनेट्स. कि ये टेंटेटिव है मेरे हिसाब से, आपको जो आगे ठीक लगता है आप वो बताओ. तो ये हो गया मिडल. यहाँ पे सबॉर्डिनेट और मैनेजर के पास इक्वल पावर है. देन कम्स
Manager presents the problems, gets suggestions and then make decisions. Then manager defines the limits and asks the subordinates to make decisions. And last, manager permits subordinates to function without superior. ठीक है, तो ये हो गया आपका TNS कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप. Then comes the contingency model by Fiedler. Contingency model says कि depending upon the situation, contingency क्या होती है? Accounts पढ़िए. Contingent fund क्या होता है contingency? It as and when it may arise. Contingency यही होती है, situation हो सकता है आए, हो सकता है ना हो. You are planning beforehand according to it. तो कंटिजेंसी लीडरशिप भी यही बोलता है कि आप पहले से सोच समझ के सब कुछ चलते हो और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाते हो. ओके. देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. ठीक है, इसको हम आज भी अच्छे से कर लेंगे. ओके, तो दीज आर सम ऑफ द लीडरशिप थ्योरीज. Coming to the unit number 2, developing leaders. How do you develop leaders? इतनी सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली. एक थ्योरी बोल रही है कि पैदा ही होता है लीडर, एक थ्योरी बोल रही है ट्रेड्स के हिसाब से होता है, एक थ्योरी बोल रही है कि लीडर के 4 टाइप्स हैं, एक थ्योरी बोल रही है 5-6 टाइप्स हैं. तो हाउ डू यू डेवलप लीडर्स? क्या आप में से कोई लीडर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. हाउ? इट इज़ अ प्रोसेस. सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इट इज़ अ प्रोसेस. आज जो आपको पीपल्स पर्सन लग रहा है वो कल को हो सकता है ना लगे. तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस. ओके, वन पर्सन हु माइट बी अ लीडर, साउंड लीडर टुडे, माइट नॉट बी अ साउंड लीडर टुमारो और आफ्टर 10 years. ठीक है. प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग इंडिविजुअल्स विद लीडरशिप पोटेंशियल, दीज ट्रेट्स. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे लीडरशिप आप इनकलकेट कर सकते हो? थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, थ्रू मेंटोरशिप, एक्सपोजर टू चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एम्फेसाइजिंग ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रमोटिंग लीडरशिप कल्चर एट ऑल लेवल्स. इसके अंदर क्या वर्ड समझ में नहीं आया? इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया? क्या होता है ये हमने बहुत पहले भी कभी डिस्कस किया था. What is emotional intelligence? बताओ. वो तो एम्पैथी होती है. Yes, empathy is a part of emotional intelligence, but what else is emotional intelligence? जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि you have to be very careful. क्यों? क्योंकि आजकल EQ is given more weight than IQ. EQ defines your resilience. Resilience, how well you stand up after you have faced a setback. क्या आप ऐसे ही दुखी आत्मा बन गए हो after getting some setback, major or minor? या फिर you are being resilient, आप you are getting back, you are on your toes and then you are learning from your mistakes, right? तो आजकल organizations want people who are high on EQ. IQ वाला काम करने के लिए हैं लोग, right? But EQ मैनेज करना आज के सिचुएशन में, आजकल की जनरेशन में बहुत मुश्किल हो गया है. People are very what do we say, impulsive. जो माइंड में आता है वो उसी टाइम उसको बोल देते हैं विदाउट एनी फिल्टर. दे आर नॉट हाई ऑन EQ, राइट? EQ is number 1, self awareness. You are aware, you are aware of who you are, hence you are also behaving like that. Okay,
आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, ठीक है. यू आर पोर्ट्रेइंग योर स्ट्रेंथ, वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस. नंबर 1. नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेटिंग योर इमोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट है आजकल के सिनेरियो. अदरवाइज एक हल्के से एक्सीडेंट में भी किसी की जान जा सकती है कि हल्का सा डेंट ही पड़ा है एंड देन दिस पर्सन हैज किल्ड द अदर पर्सन, राइट. there is so much impulsiveness, there is no control over the emotions, hence people are not high on EQ. आजकल के people are not high on EQ. पहले के थे, when people used to चलो थोड़ा टाइम देते हैं सिचुएशन को, अपने आप हैंडल हो जाएगी सिचुएशन, राइट. दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड पीपल, क्योंकि वन कम लोगों से उनकी इंटरेक्शन होती थी, इसलिए दे यूज्ड टू बेटर अंडरस्टैंड देम. दे यूज्ड टू मेक एफर्ट्स अंडरस्टैंडिंग पीपल. तब तो नहीं होता था सोशल मीडिया कि आपने कुछ पोस्ट किया, यू आर गेटिंग द डोपामाइन बूस्ट विद द लाइक्स यू आर गेटिंग. नहीं, तब तो आपको रिलेशनशिप बनाने ही पड़ते थे, तब तो आपको इंटरैक्ट करना ही पड़ता था. आजकल इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं फिजिकल इंटरैक्शन के, दैट यू आर लूजिंग द फिजिकल टच, राइट. अगेन एआई का नेगेटिव. ओके, सेकेंड पार्ट इज व्हाट? रेगुलेटिंग योर इमोशंस. थर्ड पार्ट इज एम्पैथेटिक. आपने रेगुलेट कर लिया बट अपना ही अपना सोच रहे हो, दूसरे के बारे में भी तो समझो. बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स, अंडरस्टैंडिंग देम. ओके, गिव सजेशंस ओनली इफ रिक्वायर्ड. ठीक है. फोर्थ इज यू आर हैविंग गुड सोशल स्किल्स. आपको सब कुछ आता है, आप अपने बारे में समझ रहे हो, आप दूसरे के बारे में समझ रहे हो, आप अपने इमोशंस भी हैंडल कर रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, राइट. तो देन अगेन यू विल बी लो ऑन EQ. सीखी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट यू हैव टू कम्युनिकेट एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग, ऊपर के 3 पॉइंट में, इनटू दी वर्ड्स एंड एक्शंस. तो कम्युनिकेशन से आता है. सो EQ इन चीज़ों से कंप्राइज्ड होता है. People nowadays want, organizations nowadays want people who are high on EQ. IQ वो skills वगैरह से ट्रेनिंग से इम्पार्ट कर देते हैं, ठीक. Is there any relationship between personality and leadership? कि ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लोग ही अच्छे लीडर बनते हैं. आपने पिछली क्लास में MBTI टेस्ट करा था, राइट. आज सर्च करो which MBTI trait generates highest leaders. Which MBTI traits generate highest leaders? आई से कोई नहीं आया? आई से ई ही आ रहा है सबका. ओके, सर्च. ओके, ओके. अब INTJ भी आया कहीं पे? ओके, अब सर्च करो हाईएस्ट नंबर ऑफ CEOs या फिर फाउंडर्स आर ऑफ विच MBTI पर्सनैलिटी ट्रेट. हाईएस्ट नंबर ऑफ फाउंडर्स, बिजनेस फाउंडर्स आर ऑफ विच पर्सनैलिटी ट्रेट. ENTJ. और
So is there any relationship between personality and leadership? Seems like. The most basic characteristics of E, extroverts, is what? They are able to communicate, they are able to express, and we need that. N, intuitive, that they are able to work upon their, make decisions through their intuition. They are able to guess कि आगे क्या होने वाला है, right? F था, T था यहाँ पे, चलो जो भी था. Feeling, feeling. INTJ था, INFJ था. Okay. चलो both are good enough. F आ गया आपका feeling. Okay. Thinking आ गया आपका. Where are you? Skill and knowledge, competent. ठीक है. J आ गया आपका judgment. That you are able to judge the situation properly and then take actions. ठीक है. So yes, there appears that there is a relationship between personality and leadership. Introvert. I is introvert. But what I feel is कि अगर आपको founder बनना है, you need not be the extrovert in that. अगर आप किसी company के founder बनना चाहते हो, you do not need to be an extrovert in that. But I think the extrovert being with a group, you have to explain yourself a plan with your teammates because तभी वो आप उसको अकेला इंसान कर सकता है लेकिन वो उसके लिए बहुत लॉन्ग जर्नी चाहिए. I'm example of एलन मस्क, अगर वो अपनी टीम के साथ में अगर उस पर्सनालिटी को नहीं रखते हैं सो मे बी वो जो आज की डेट में उन्होंने अचीव किया वो शायद उनको अचीव करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है. ऑन प्रैक्टिकल बेसिस चाहिए. ठीक है. But not necessarily, introverts are not always people who are not able to communicate well. They are people who reserve themselves for few people. Yes. इसमें क्या होता है कि let's say I am, for example, I am an introvert. I have a creative mind. मेरे mind में बहुत innovative सा idea आया. Yes. उस idea को implement कराने के लिए I might need help from somebody who's an extrovert, somebody who can talk to people, somebody who can जगह जगह जाके घूम घूम के इस आइडिया का एनालिसिस कर सके मेरे लिए. हो सकता है मैं वो चीज़ ना कर पाऊँ. आई विल गेट समबडी फॉर दैट. बट आइडिया आया. फाउंडर तो मैं बनी सकती हूँ फिर भी, राइट? नॉट कि इंट्रोवर्ट्स कैन नेवर बी द फाउंडर्स. ओके, पीपल हु स्पीक लेस हैव मोर क्रिएटिव माइंड्स. ये भी स्टडी थी, राइट? तो बोथ नीड टू सपोर्ट ईच अदर. तो एलॉन मस्क का आया तो मैंने ये स्लाइड खोल दी. So yes, there seems to be a relationship between personality and leadership. Personality में ये सारे traits. Personality trait, one is inherited, one is learned. Inherited traits जो which you are born with. Let's say दो type के लोग हैं. One person who comes from a family which is not so affluent. उसको बस यही बताया गया कि पढ़ाई ही एक तरीका है आगे बढ़ने का. उसने पढ़ाई करी, राइट? पढ़ाई कर करके टॉप करा, टॉप करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद प्लेसमेंट करी है, प्लेसमेंट लेने के बाद वो काम कर रहा है, कर रही है, जेंडर न्यूट्रल हूँ मैं, क्या निकल गया, जो भी है. तो देन वर्क प्लेस पे हो सकता है उसका पर्सनालिटी चेंज हो जाए, राइट? बट अभी तक उसने क्या लर्न करा है, क्या उसका इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, दैट पर्सन माइट बी समबडी हु विल बी रिस्क एवर्स. क्यों? क्योंकि उसने बचपन से कोई रिस्क नहीं लिया. यस, वो सोशल भी कम होगा. क्यों? फोकस उसने एक जगह पे करा है. उसका था कि ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना नहीं है. ऐसे पहले की कहावत थी ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे दिस, घूमोगे फिरोगे बनोगे दैट. ठीक है, दिस दैट फिल कर लेना. तो आजकल ऐसा नहीं है. आजकल बोलते हैं कि हम एक्सपीरियंस करेंगे पहले. वी विल बी ट्रैवलिंग, वी विल बी टॉकिंग, वी विल बी व्यूइंग एवरीथिंग, देन वी विल बी डिसाइडिंग अपॉन समथिंग. अब तो टोटली चेंज हो गया है, राइट?
तो पहले हमें जो पढ़ाया गया था उसके हिसाब से तो हम बिल्कुल सोशल नहीं होने चाहिए लोग, राइट? तो वो हो गए इनहेरिटेड ट्रेट्स। लर्न ट्रेट्स जो आपको लगता है आपके जॉब के अकॉर्डिंगली आपको ज़रूरी है करना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay. Traits associated with this kind of personality, leadership kind of personality. Okay, traits associated with personality. First is positive and negative affect. Okay. Emotions और mood में क्या फ़र्क है? Which has longer duration impact, which has a shorter duration impact? अच्छा, आप बोल रहे हो इमोशंस का लॉन्गर, मूड का शॉर्टर। इमोशन इज व्हाट, कि मुझे डर लग रहा है, राइट? कि ये चीज़ हुई, ऊपर से कुछ गिरा, एकदम से मेरा रिस्पॉन्स था आई वॉज मूविंग बैक, दिस वॉज द इमोशन, फियर इमोशन, दैट्स इट। मूड क्या है, मैं पूरे दिन उसके बारे में सोचती रही, ओके, कि मेरे साथ ये हो सकता था, मैं तो बच गई, आई एम सो लकी, या फिर मेरी इतनी किस्मत ख़राब है, मेरे ऊपर ही होना था। इट कुड गो बोथ वेज, राइट? तो इमोशंस आर शॉर्ट ड्यूरेशन, मूड कुड बी लिंगरिंग टू ज़्यादा आपके माइंड में, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ऑफ एन ओवर थिंकर यू आर, ठीक है? एंड मूड एंड बिहेवियर आर इंटरट्वाइंड। आपका जिस तरीके का मूड होगा, एट टाइम्स यू डोंट इवन नो आपका मूड क्या है, क्यों है, बट वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो वो फिर और लॉन्ग रन हो जाता है। आपने बिहेव कर दिया उस तरीके से किसी के साथ, अगेन दैट इज इम्पैक्टिंग यू, आपका मूड फिर खराब हुआ, देन यू बिहेव, देन अगेन इट इज इम्पैक्टिंग यू। तो इट इज सेड कि इमोशंस को एज इमोशंस ही समझो, डू नॉट टेक इट इन, डू नॉट टेक इट कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको मूड बनाओ ही मत कि ये हो गया, ठीक है, ख़त्म। यू एक्सपीरियंस्ड दैट इमोशन एट द मोमेंट, ख़त्म करो उसको, राइट? उसको अंदर मूड एंड देन बिहेवियर के अंदर आने मत दो। जनरल एडवाइस, डिफिकल्ट टू फॉलो, ओके। ओके, सो यू हैव टू टाइप ऑफ मूड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूड्स। गुड मूड्स लाइक हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, यू फील हैप्पी तो आप पूरा दिन ही खुश होते हो, एंथुजियास्टिक तो आप 3-4 महीने तक एंथुजियास्टिक हो जाते हो, राइट? नेगेटिव मूड्स, फियर, अनईजीनेस हो रही है, पता नहीं चल रहा है क्यों हो रही है, बट हो रही है, राइट? सो मूड, नेगेटिव मूड। अनईजीनेस इज लाइक वो बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से हो सकती है। इंटरनल फैक्टर्स इज लेट्स से uneasiness due to, let's say I had some bad food yesterday, or I'm not feeling well क्योंकि कुछ भी, right? So that is being uneasy. Okay, yes, you are feeling uneasy, yes, that's a feeling. अगर वो लॉन्ग रन में uneasiness हो रही है, then that becomes a negative mood, ठीक है? Another trait associated with what makes you your personality is self-monitoring. How much monitoring are you upon yourself? कि आप अपने बारे में कितना सोच रहे हो, कितना अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो। जितना ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हो उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, राइट? व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? योर इमोशंस, योर moods, योर पर्सनैलिटी, योर रिलेशनशिप विद अदर्स, दिस इज इंट्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? जितना ज़्यादा आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, इतना ज़्यादा भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना है कि आप इंट्रोस्पेक्ट ही करे जा रहे हो, यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट। देन इंट्रोस्पेक्ट, पॉज, रिफ्लेक्ट, एक्ट, ठीक है? डू नॉट जस्ट गो इन टू दैट हाइबरनेशन मोड कि आप इंट्रोस्पेक्ट ही करे जा रहे हो, संत स्वामी बन गए हो, कि सब कुछ बुरा। फिर इंट्रोस्पेक्ट अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, हम हैं ही क्यों,
हमारा पर्पस क्या है, राइट? तो इतना भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर देना है कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही हो रहा है, नो। जब कभी भी ऐसा लगे ना कि बहुत बुरा हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल जाओ, राइट? और भी बहुत कुछ बुरा हो रहा है। आपने वो वाली बात कर दी, जब लगता है कि कुछ खत्म होने वाला है, एक बार शमशान घूम के आ जाओ। ये तो शमशान नहीं, वो तो खत्म हो गया। people used to do this because they are feel कि some everything is gone in हाँ, life. राइट। कहते हैं भाई हमसे बने बैठे उधर, चलो वापस। So बट it is पता है शमशान में तो ये हो गया कि इट इज़ गॉन, यू आर नॉट एबल टू फील दैट। तुम हॉस्पिटल जाओ जहाँ पे लग रहा है कि कहाँ है अभी, स्पेशली इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हाँ, वहाँ पे देखो कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कितनी लाइन, सरकारी हॉस्पिटल में जाना और लाइन लगा के कैसे, राइट? तो जब भी लगे कि कुछ नहीं बचा, मंदिर से पहले हॉस्पिटल जाओ सरकारी, ठीक है? तब लगेगा बहुत कुछ है आपके पास। प्रोएक्टिव पर्सनालिटी, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव में क्या फ़र्क है? कि टाइम टेबल अभी आया नहीं तो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, ये हो गया रिएक्टिव। प्रोएक्टिव है एग्ज़ाम तो होने ही है नहीं हाउ, चाहे कल आए टाइम टेबल या 1 महीने के बाद आए टाइम टेबल, एग्ज़ाम तो होंगे ही, तो लेट अस स्टडी। दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव इन योर सेंस। सेल्फ एस्टीम, आप अपने आप को कहाँ पे समझते हो, कहाँ समझते हो बताओ? ये आता है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन से ही आता है। व्हेन वी आस्क हु यू आर, बताओ हु यू आर। आई एम अ टीचर, नो दैट इज़ नॉट हु आई एम, दैट इज़ अ डेजिग्नेशन अलॉन्ग विद मी, राइट? आई एम अ डॉक्टर, नो, हु आर यू, क्या समझते हो अपने आप को, राइट? तो सोचना कभी इसके बारे में कि व्हेन समबडी आस्क्स यू हु यू are you all able to only explain yourself in the terms of the designation you are carrying? क्या हो, what makes you you? हाँ वही तो, who बताओ। it's a way that you behave with people. For example, if you ask me who I am, हाँ, I'm a being who try to do whatever I can do for the society, for the betterment of the society, whatever okay, means of it, either it is a financially, either it is a physical help. okay, So I am a person who having a helping nature. So that is two ठीक है, things that I learn about. ठीक है। He is a person who is of helping nature, ठीक है, गुड। और बताओ, अब बस एक एक ऐसे ऐसे पॉपअप करते रहो कहीं से भी। What makes you you? अगर उसका हेल्पिंग नेचर उसके कैरेक्टरिस्टिक से हटा दिया जाए तो देन इट विल बी कि यार वो तो वो नहीं रहा, ऐसा टाइप का नेचर बताना है अभी, ठीक है? बताओ, सोच रहे हो कि सोच, क्या आंसर नहीं मिल रहा? एम्पैथेटिक, ओके, ओके, Commitment to your words, what I believe in. ओके, Because whenever it's personally happens with me, whenever I commit something to the and I'm not able to do this, then I feel yeah, why am I? Nothing is left behind. ओके, ठीक है, ओके। आई टेल यू द आंसर, मेरा अपना पर्सनल, कि हु एम आई एम समबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव, आई थिंक आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, राइट? बट आई ओपन अप ओनली इन द एरियाज विच आई एम कंफर्टेबल इन। दैट इज़ वाई आई थॉट कि इसके अलावा मेरे से कुछ हो नहीं सकता टीचिंग। आई एम गुड at least I feel that, right? I am good at understanding students or people in general, right? So I thought of this is the good profession for me. ये मैं दो चीज़ें अलाइन करके बोल रही हूँ कि मुझे लगा कि I am an introvert, only good thing I can do is this, ikigai, सुना है? Right? What you are good at, what you are passionate about, what you can earn with it.
राइट ज़रूरी नहीं है कि शुरू में या तो आपका ये माइंडसेट है कि पैशन से पैसा कमाना है, या तो माइंडसेट होना चाहिए पैसा कमाना है एथिकल वे से। It's not about you have to earn money for passion. हाँ In fact, passion is give you a lesson in your life. For example, a person who believe who want to be hike mountains. So his passion is not going to earn something from there. वो उसका personal attributes है. वो personal है उसका कि उसको passion है कि उसको mountain hike करना है. या किसी को someone is want to serve passionately serve on a defense mission. Although वहाँ से पैसा मिलता है for the financial है. मैं मानता हूँ उस चीज को कि बिना पैसे कोई कुछ नहीं करता. Right. Still कुछ लोगों का होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, उसके लिए उसको कुछ नहीं मिलता, जस्ट ओनली वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन। बट मान लो देर इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट अर्निंग, हु इज़ नॉट फ्रॉम अ बैकग्राउंड, हु हैज़ गिवन समथिंग टू दैट पर्सन, कोई इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, तो वो पहले हाइक करने की सोचेगा या कमाने की सोचेगा? है ना? ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। मतलब बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में सब जानते हैं, लड़का अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में हुआ है, अंकित ब्यानपुरिया। कौन? अंकित ब्यानपुरिया ऐसा अ पर्सन हु स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम 75 डेज चैलेंज, सुना होगा 75 डेज। ओके ओके ओके। तो उस बंदे ने इंडिया में फर्स्ट टाइम किया था। ऐसा नहीं है इंडिया में उस चीज को पहले किसी ने नहीं किया। The challenge that he did from last 8 years. Every armed forces person did this from last 8 years. हम रोज सुबह 15 घंटे 20 किलोमीटर रनिंग करते हैं। अच्छा, ओके। हम करते भी हैं। मैं ही नहीं करता, उसने उसको इंडिया में रिप्रेजेंट किया है। He started from the basics. ओके। तो मैं वही बोल रहा हूँ, उसने किसी पैसे के लिए नहीं किया। He just do it for the रिप्रेजेंट। passion. Okay. I just gave an example. I'm not saying you are wrong, but yes, उसके पास फाइनेंशियल नहीं था, but आज उसके पास सब कुछ है उसकी पैशन की वजह से। राइट। तो पैशन ब्रिंग्स मनी, कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप परस्यू करोगे अपना पैशन पूरी शिद्दत के साथ, इट विल ब्रिंग समथिंग। चाहे आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, कुछ सही चीज़ें कर रहे हो उस पर, दैट विल गिव यू मनी, राइट। चाहे आप ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं दैट आई बिलोंग टू हिमाचल एंड देयर इज़ अ पर्सन, उसको कुछ नहीं आता था, ही वॉज नॉट इवन लर्नेड एजुकेटेड, कुछ नहीं, उसको बस घी निकालने आता है, दूध निकालने आता है, उससे घी बनाने आता था, दैट इज़ इट। उसको और कुछ नहीं आता था, वो घी बना रहा है और उसने अपनी बेटी की करोड़ों में शादी करी है। उसने अब मतलब ये जो मैंने बताया कि दैट पर्सन ओनली न्यू हाउ टू गेट घी फ्रॉम द काउ एंड बफेलो मिल्क। अब उसने बस वही काम करा, देन ही बिल्ड अप, छोटी सी फैक्ट्री बनाई, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी फैक्ट्री, फिर उसके बाद अच्छा बिजनेस करा, नाउ ही सप्लाइंग आसपास के एरियाज में। उसने अपनी बेटी की करोड़ों में शादी करी है। ओनली वन थिंग ही न्यू, ही वॉज पैशनेट अबाउट, बस हो गया, राइट। फाइंड योर दैट वन थिंग। बिल्कुल, अदरवाइज वो तुम कितने 5-6 साल करोगे, देन इट विल बी जो आजकल मिलेनियल्स कर रहे हैं कि वी विल वर्क फॉर 30-40 ईयर टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, देन वी विल रिटायर। एक इंसान बोल रहा है कि आई एम सो पैशनेट अबाउट वर्क दैट आई एम रेडी टू गिव इन 70 आवर्स इन अ वीक टू वर्क, बिकॉज दैट पर्सन इज पैशनेट। उसका खुद का ही तो कंपनी है, इसलिए तो पैशनेट है। आप किसी और से अपनी कंपनी में बोलोगे काम करने के लिए 70 घंटे, नहीं करेगा। उसको बोलोगे अपनी कंपनी में काम कर 70 घंटे, वो कर लेगा इन अ वीक, राइट। अब इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी ऑल्सो, कि हमारी कंट्री के अंदर अगर आप अभी 3 डेज बोल दोगे ना, नहीं चलेगा। कंटिन्यूटी आपको रहनी पड़े 24/7 रहना पड़ता है। 3 days hours it seems to be good for the corporate sector. इट सीम्स टू बी गुड फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन जनरल, कि आज जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गई है, देन आप रिलैक्सेशंस दे रहे हो कि आप थोड़ा कम काम भी करोगे तो भी चलेगा, जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अभी वी आर इन द डेवलपिंग फेज। बिल्कुल, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 70 घंटे काम करो। अगर अपनी कंपनी में कर रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है, या किसी और की कंपनी में कर रहे हो, मन कर रहा है, करो। अपने लिए काम कोई भी कर सकता है 70 घंटे, दूसरे के लिए करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, unless and until that other person is providing you benefits for the same. डेवलपिंग कंट्री के अंदर आई डोंट थिंक कि 4 days या 3 days वर्क वीक
हो सकता है। इकोनॉमी क्या होती है, कैसे चलेगी अदरवाइज? सब कुछ ही तो बंद हो जाएगा, आप ऑफिस से निकलोगे नहीं, रिक्शे वाला नहीं चलेगा, उसका भी तो लॉस है, रिक्शे वाला नहीं चलेगा, आगे खरीदेगा नहीं, इकोनॉमी में सर्कुलेट कैसे होगा पैसा, राइट? वो अलग बात है कि 3 दिन में आप फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वहाँ से पैसा जनरेट हो सकता है, मूवी देखने जाओगे, कोई एंटरटेनमेंट करोगे, कुछ और करोगे, राइट? सो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ डिबेट इशू जो कि हमने डिस्कस करा भी था 1-2 क्लास पहले, ठीक है? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिशिएंट, मैं ये काम कर सकती हूँ। राइट? बिलीविंग what you can do and actually doing it, right? locus of control, ये मैंने बताया इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल locus of control is what? कि हाँ ये गलती हुई, मेरी वजह से हुई। एक्सटर्नल इज what? ट्रैफिक था, मेट्रो लेट चली, मेरे घर वालों ने रोक लिया, दूध बहुत गर्म था, मैं पी नहीं पाई, कुछ भी, बस अपनी गलती नहीं, बाकी सब गलत है। एक्सटर्नल locus of control, ठीक है? तो ऐसे लोग अच्छे लीडर्स भी बनते हैं और बुरे लीडर्स भी बनते हैं। अच्छे लीडर्स क्यों? वो हर बार बोलते हैं कि ये तुम्हारी वजह से गलत हुआ, डिक्टेटर टाइप लीडर, राइट? जो पार्टिसिपेटिव टाइप लीडर हैं वो अपनी गलती भी मानेंगे कि हाँ मेरे से डायरेक्शन देने में भी गलती हुई, ओके? तो लोकस ऑफ कंट्रोल आपका कहाँ पर है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एंड दीज आर द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। याद कैसे करोगे? ओशन, OCEAN, ओशन। ये भी पढ़ा होगा फर्स्ट उसमें, राइट? इसके अंदर क्या है? देयर आर 5 पर्सनैलिटीज। O is openness, basically extrovert, right? Openness to unfamiliar, unusual or unexpected circumstances. Conscientiousness is how focused you are, how other people depend on you, you are being conscientious, how rational you are. Extraversion, again extraversion is what? OCE, okay. Social interaction, communication. Openness यहाँ पे है to something unexpected or new. Extraversion है related to communication. Agreeableness, ये लोग बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं कि जो सब कुछ मान जाते हैं। Agreeable, आपने जो बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी, agreeable personality, right? Neuroticism is a negative trait in this ocean. Negative trait है, ये नहीं होना चाहिए। Neuroticism is basically कि जहाँ पे आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, इनटॉलरेंस, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, न्यूरोटिक, ओके? यू नीड टू बी ऑपोजिट ऑफ दिस। ये सब तो हमने कर लिया। वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। नंबर 1 डेमोक्रेटिक। क्या होता है डेमोक्रेटिक? कंटिंजेंट और एक सिचुएशनल थ्योरी, हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ये दोनों सिचुएशन इज अ पार्ट ऑफ कंटिंजेंसी, ये दोनों अलग अलग लोगों ने दी हैं। कंटिंजेंसी क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से आप मोल्ड हो जाओगे। सिचुएशनल थ्योरी भी यही होती है कि देयर आर 4-5 सिचुएशंस गिवन और उसके हिसाब से यू विल बी वर्किंग। यस, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, एक दूसरे का पार्ट है। सिचुएशन इज अ पार्ट ऑफ कंटिंजेंसी, राइट? अदरवाइज देयर इज नो मच डिफरेंस टू बोथ ऑफ दीज, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इनमें। Democratic style, what is democratic? Participative style of leadership, you are asking everybody their opinions, inculcating their opinions and then taking some decision. Autocratic, example, अभी कोई बहुत बड़ा लीडर रोया था पब्लिक स्केल पे, क्यों रोया था? And that person is actually autocratic, dictator. Resident, हाँ, why did he cry? हाँ, उस पर रोने वाली बात क्या थी पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई। एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग।
हाँ हाँ, एक्चुअली वही एवरीबडी, दैट वाज अ हेडलाइन फॉर 1 or 2 days कि किंग जोंग यू जो सबको दैट पर्सन इज क्राइंग, राइट. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डिक्टेटर टाइप ऑफ लीडरशिप कि मेरा बोलना ही सही है, हाँ, nobody else's opinions will matter, right. Laissez-faire leadership, what is this leadership? कि आप पूरा कंट्रोल दे दो. We can provide the facilities to the Yes. team and we want the results from that. Yes, I will not interfere in what you do, what you take decisions about. आप बस ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको ध्यान में रखना है, and you can do whatever you want. We will provide you with resources, we will provide you with help, we will provide you with everything that you require to reach that objective. Okay. Transformational leadership, ये पिछली क्लास में भी बताया था. ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट, राइट. अचीवमेंट ओरिएंटेड जो मैंने बताया था, दैट इज एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, दैट यू वांट देयर बेस्ट, कि आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रीच करो. आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू. ओके, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, bringing change in the organization and people for good. ट्रांजैक्शनल लीडर, नाम से ही लग रहा है ट्रांजैक्शन, ये करोगे तो फ़ायदा होगा, ये नहीं करोगे तो नुकसान होगा, ये करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, ये नहीं करोगे तो मैं इतना सैलरी काट लूँगा, या डिमोशन दे दूँगा, या फिर ट्रांसफ़र कर दूँगा, राइट. तो ट्रांजैक्शन बेसिस पे आप लीडरशिप कर रहे हो, स्टिक एंड कैरेट अप्रोच से. स्टिक व्हेन दे डू नॉट वर्क, कैरेट व्हेन दे वर्क. करिज्मेटिक लीडरशिप, ये क्या होती है? करिश्मा, बाइक नहीं, करिश्मा क्या होता है? कि देर आर सम पीपल हु यू, यस. अब यहाँ पर आ जाता है आपका स्पिरिचुअल गुरुज, या फिर नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको जनरली पसंद आते हैं, एवरीबडी इज़ लाइक दे आर गुड, ये जो बोल रहे हैं वो कर लेते हैं, ये कभी बुरा नहीं बोलेंगे. कोई सजेशन पूछना होगा तो सजेशन आप उन लोगों से पूछोगे जो आपको जनरली यू आर लाइक कि हाँ ये बुरा नहीं चाहेंगे किसी का. करिश्मा, राइट, ठीक है. हिज पर्सनैलिटी इज सच दैट यू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन दैट पर्सन, ट्रस्ट भी नहीं, फेथ है, जो करेगा ठीक ही करेगा, राइट. So this is charisma, कि you do not know what factors or what traits he is composed of, or you even know that traits, but generally everybody likes him or her, right. There is some charisma, there is some personality trait. क्या? Everybody likes him. As a human being, he's not such a good person. Especially for Indians. A man who lives in India and donate for Pakistan, damn it, if he is in front of me, I'll definitely shoot him. अरे. Yes, ma'am. Every army person wants to shoot him. Okay. At any time, any. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है. नहीं बता रहा हूँ मैं, वो उस बंदे से 2 दिन से नफरत है. 15 दिन पहले उत्तराखंड में वो आया था जो केदारनाथ बद्रीनाथ में. वहाँ you don't donate, but you donate for the Pakistan for the 10 stupid militants. Professionalism, that is you say na. Okay. सर्वेंट लीडरशिप. अच्छा, करिज्मेटिक लीडरशिप में आप स्पिरिचुअल गुरुज का एग्जांपल ले सकते हो, दैट दीज आर द पीपल हु हैव अनवेवरिंग फेथ ऑन देम ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम पर्सनैलिटी, सम करिज्मा दैट दे होल्ड, राइट, समथिंग दैट दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इन देयर लाइफ्स मे बी. सो डू यू ऑल्सो फॉलो एनी ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स?
Who? Who? सैम मानिश। अच्छा, ओके। वो तो आपका वो उसमें आ गया ना फिर, नहीं रोल मॉडल, एज अ पर्सन, दैट इज अ रोल मॉडल एज अ टाइप। पर्सन सोल्सो। Okay. Okay, what was I discussing? What I feel is spiritual leaders say the same things that you already know deep within your heart. आपको पता होता है कि आप बस कंफर्मेशन और एफर्मेशन के लिए जाते हो वहाँ पे, अगर जाते हो तो यू नो ये ठीक है, ये गलत है। एवरीबडी नोज, कोई भी आप काम करने से पहले ना, देर इज़ अ सच अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड गट इन यू ऑल, in everybody of us, that is what separates us from some animals, that we have a very strong intuition and gut, we know what is right and wrong. कुछ भी काम करने से पहले आपको उसका कॉन्सिक्वेंस हल्का सा ही सही, आपको पता होता है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि ठीक नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ तो भी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑल्सो रीइटरेट। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि वो उनके आप उनके जो जो आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, जो फिजिकल सॉल्यूशंस दे रहे हैं, यू हैव टू फॉलो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर लिसनिंग टू देम जस्ट फॉर रीअफर्मेशन, इट इज ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज हार्मिंग यू एंड एनीबडी एल्स, इट इज ओके, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी स्पीक। सर्वेंट लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप आप ही आप हो, हमारा कुछ नहीं, आप ही बढ़े चलो, हम दिखेंगे भी नहीं, हमारा कहीं नाम ही नहीं आएगा, बस आप ही बढ़े चलो। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है, एवरीबडी वांट्स क्रेडिट कि मैंने ये किया, मैंने ये करवाया, राइट, ओके। इसको एक बार रीड कर लो, that these are some of the leaders who people have followed in past. Why people used to follow them was, सबसे important, shared vision. वो जो मानते थे बाकी लोग भी वही मानते थे, okay? Shared vision is the most important factor in them, which made others follow them. Okay. These are some of the examples of leaders. You can read what characteristic traits did they have. Steve Jobs, dominance and innovation. Right? He knew what he was doing. He knew what was required. He was a visionary. Okay? जो कोई नहीं सोचता था वो स्टीव जॉब्स ने सोचा, राइट। नेल्सन मंडेला, एम्पैथी एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? गेटिंग अप फ्रॉम द सेटबैक। आपको कुछ नेगेटिव हुआ, हाउ क्विकली यू आर एबल टू बाउंस बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ, दिस इज रेजिलियंस। ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर आजकल यही चाहिए। अप एंड डाउन्स इतना ज़्यादा हो गया है, देयर इज सो मच डायनामिक एनवायरनमेंट दैट इज अफेक्टिंग ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट दे नीड पीपल हु आर रेजिलियंट इन नेचर। ये नहीं कि दुखी होकर घर पे बैठ गए, कुछ हो ही नहीं रहा। पुराने ज़माने में आपने कभी सोचा था कि डिप्रेशन हो गया? क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनके पास काम इतने होते थे करने के लिए,
डिप्रेशन के लिए टाइम ही नहीं था. अब 4 डे वर्क वीक हो जाए तो 3 दिन तो आधे लोग डिप्रेशन में ही रहेंगे, राइट. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए ही बुरा है. कुछ कुछ लोग होते हैं हु आर लाइक ओवर थिंकर्स. अब हमारे फैमिली में कभी कभी क्या होता था दैट फ्राइडे आता था और लड़ाई हो जाती थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ प्लान बन रहा होता था, लड़ाई हो जाती थी, सैटरडे संडे ऐसे ही जाता था. नॉट एवरी टाइम ऑफ कोर्स. देखिए भी आप 4 डे वर्क वीक हो जाए तो 3 दिन तो लड़ाई ही रहेंगी, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा इंसान, राइट. नॉट सेइंग कि हर किसी के घर पे ऐसा ही है, जस्ट ऑन अ लाइटर मोड. देन CEO ऑफ फेसबुक शेरिल सैंडबर्ग. Collaboration, empowerment, agreeableness. People used to like her personality. Okay. Empowerment, women empowerment. Elon Musk, as he also said, extraversion, ambition, risk taking. रिस्क टेकिंग तो आपने देख ही लिया कितना ज़्यादा है. ट्विटर का क्या नाम रख दिया है, अपने बच्चे का क्या नाम रख दिया है, राइट. सो माइट बी गुड, माइट बी not okay for everybody else, right. There are people who really admire him and there are people who do not like him at all. कि कुछ भी irrational decision ले लेता है कभी कभी. स्टॉक्स को एकदम ही इन्फ्लुएंस कर देता है कि इतनी ऊपर और इतनी नीचे चले जाते हैं, राइट. सो दिस इज अगेन controversial. Who all like him and who all do not, I am not asking you, but yes. Angela Merkel, former Chancellor of Germany. High conscientiousness, analytical thinking. Again, a symbol of women empowerment. Now, write down his traits and leadership style. एक्सप्लेन नहीं करना, बस पॉइंटर्स लिख दो. दिस 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 दिस, दैट इज व्हाई ही इज अ लीडर. Nobody can doubt that he is a great leader, right. People follow him. Whatever he say, बस मोदी ने बोला है बढ़िया ही है, right. ऐसा क्या है, what are the personality characteristics, why do people follow him, that's it. आपस में नहीं, अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आप अपना अपना लिखो. छुपा क्यों रहे हो? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उसकी, आसानी से बेवकूफ़ बना देते लोगों को. लिटरली कुछ अच्छा नहीं आएगा दिमाग में. You have to think of good things. Why? Because he is a leader, right. What I am asking is, why is he a leader? Why is he a leader? That's it. Good communication skills, yes, could be one. Social, yes. When in Rome, do what Romans do. ये जहाँ पे जिस क्राउड में जाते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेट और ये सब में होना भी चाहिए, बट नॉट एवरीबडी इज एबल टू इनकलकेट दिस. कि जो सोशल सेटिंग है उसके हिसाब से मोल्ड हो जाओ. Risk taker and courageous. Okay, he is a risk taker
कि नोट बंद कर दिए एंड करेजियस ऑल्सो. This was something which was not thought of by previous governments. इन्होंने सोचा, implement कर दिया रातों रात. That was a very I remember that when that was like 8th November 2016 and I was shopping for my brother's wedding. सब थे हम, फैमिली पूरी फैमिली गई थी एंड हमारे पास कैश था ऑफ कोर्स. और उन्होंने मुझे मैसेज आया, ऐसे ग्रुप चैट्स वगैरह पे तो होते ही हैं बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह पे, मुझे मैसेज आया कि 500 और 1000 के नोट बंद. मैंने पापा मम्मी को दिखाया कि देखो बहुत पहले की बात है, तो नहीं झूठ है, कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ा ना बंद हो जाएगा. अरे मैं सच में है. वो तो तब तक दुकान वालों को भी नहीं पता था, हमने जितने देने थे सब कर दिया. राइट. तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स नोबडी थॉट ऑफ दिस दैट ही कैन डू इट, बट ही डिड इट. राइट. और जनरल इंटेलिजेंस बहुत है. यस. Relationship, yes. He has good social skills. Yes. Influential है. The way he projects himself, the tone that he uses, the way he talks, even like with and without facts. Right? Those are like, अगर तुम किसी को बिना facts के influence कर सकते हो, that's a great thing. पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी लाइक बहुत भार दे के बोलते हैं हर चीज़ पे. ओके. ह्यूमिलिटी. ही टेक्स एवरीबडी in a what we are able to get from his speeches is कि वो सबको साथ लेके हम करके बोलते हैं. हाँ. ठीक है, कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. ऑन दी अदर हैंड दूसरे साइड वाले अगर आप देखो कि मैंने ये करा था, वो नहीं है उनमें. राइट. दिस इज ऑल्सो वॉट मेक्स हिम पीपल लाइकेबल पर्सनैलिटी. एग्जाम्पल इसरो का जो चंद्रयान 2 में एंड सेम थिंग दैट हैपेंस व्हेन इंडिया लूज द 23 वर्ल्ड कप. वी गो टू द ड्रेसिंग रूम एंड मीट विद द होल. एग्जैक्टली. पीपल वर स्पीकिंग. हाँ, पीपल. अभी आप भी उसको बोले कि अच्छा नहीं है ये. नहीं इसको नहीं, पीपल्स पर्सन मींस इन द सेंस वो हम बात करें जो लोग उनको पसंद करते हैं, वो क्यों पसंद करते हैं. बात कर रहे हैं. मैं अपने पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं. हाँ. But what do you think वो किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल यूज कर रहे हैं? पीपल्स पर्सन. नहीं, अभी आपने पढ़ा है. डेमोक्रेटिक. हर जगह ना, हर डिफरेंट लीडरशिप ट्रेट्स पे आपको गुजरना पड़ता है. यस. अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ आपको टास्क बेस्ड लीडर होना पड़ेगा. बिल्कुल. वहाँ पे आपको डंडा मार के टास्क करवाना है. अगर आप लेट्स से देयर इज़ एन असेंबली लाइन जहाँ पे एक जगह पे लेट्स से केचप बन रही है, एक जगह पे टमाटर धुल रहे हैं, एक जगह पे टमाटर की पीलिंग हो रही है, एक जगह पे टमाटर क्रश हो रहे हैं, एक जगह पे मिक्सिंग हो रही है एंड देन वो बॉटल में पैक हो रहा है. एक भी बीच में से मिसिंग है तो वो पूरा प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा. तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करनी, वहाँ पे आपको टास्क करना है कि काम करके दो, वॉल्यूम्स प्रिपेयर करो, आप जितना क्वांटिटी दोगे उतना हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी. वहाँ पे आप टास्क ही करोगे. कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर सच ऑर्गेनाइजेशन जब आपको ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है, डिक्टेटर की तरह काम करना पड़ता है, बिकॉज आपकी टीम उस हिसाब से काम नहीं कर रही है, बिकॉज यू हैव टू लीड. इन टफ टाइम्स नोबडी इज़ वांटिंग टू टेक एनी डिसीजंस. सो वहाँ पे अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो और उसको ऑटोक्रेटिक बोला जा रहा है, दैट इज़ ओके. एटलीस्ट कोई तो डिसीजन ले रहा है. ओके. दीज आर सम ऑफ दी
ओके ठीक है, दीज आर द फ्यू ट्रेट्स, इनके बारे में लिखो. सी आई हैव इंक्लूडेड फ्रॉम बोथ द पार्टीज, तो ये मत बोलना कि आई एम फ्रॉम पार्टी पर्सन. आई हैव इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम बोथ द पार्टीज. अब इनके बारे में भी लिख लो. और मतलब आई थिंक इन्होंने जो लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया था वो सर्वेंट वाला था. यस यस, सपोर्टिव एंड सर्वेंट. And resilience also, ma'am, because Yes. sometimes he's in jail and Jail. he was के आके फिर then he started. वेरी रेजिलिएंट पर्सन कि And उनके. it's also because he learned something from South Africa and implemented in India also. Yes, from Nelson Mandela he learned something from there and then he implemented here. People influence people because everybody following Dandi March. अकेले चल देता बाबू. हाँ. हम इंस्पिरेशनल ऑथेंटिक ऑनेस्ट सब कुछ ही. Okay. Philosophical wise, right? Then truth and integrity, कि जो वो बोलते थे वो करें. Simplicity, अहिंसा ना. अहिंसा. 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 हाँ, अहिंसा. It's दोनों ही. in English it's ahimsa. In English we pronounce it ahimsa. दोनों ही एक्सेप्टेबल है. अहिंसा वो डॉट होता है ना, कोई इसको एम पढ़ता है, कोई इसको अहिम, अहिंसा हाँ. पढ़ता है. अहिंसा, अहिंसा, वो जो डॉट है. हमारे से जैसे जैन है तो वो ये हम अहिंसा वर्ड बोलते हैं. अहिंसा परमो धर्म. अहिंसा लाइक. ओके, अरे उसको छोड़ो. सेल्फ डिसिप्लिन, एम्पैथी, कंपैशन, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेके चलना. टॉलरेंस, जेल हो क्या है फिर भी ही वॉज टॉलरेंट. डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, focus on service, spiritual foundation. Okay. Founders as leaders. चलो इससे पहले ओके. रिक्वायर्ड और नॉट. रिक्वायर्ड और नॉट से ज़्यादा कि देर आर एक्ट्स. लेट्स से कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा आपने कंपनी लॉ में. वहाँ पे क्यों वुमेन को एज एन एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे क्यों वुमेन बोर्ड मेंबर रिक्वायर्ड है? वाई डू दे हैव मेड इट कंपल्सरी, मैंडेटरी क्यों है? इज देयर एनी इम्पैक्ट विद द वुमेन लीडरशिप और नॉट? वही लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव. जीडी अगेन 10 मिनट लिखो, बाकी के 10 मिनट विल डिस्कस. See these things you can use as examples in your answers while writing. मतलब बड़े चढ़े तुम्हें लिखने आंसर्स, राइट? तो लीडरशिप का क्वेश्चन आएगा, यू कैन पुट एग्जाम्पल्स ऑफ सम लीडर्स, यू कैन पुट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन लीडरशिप, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, व्हाई दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बोथ द पॉइंट्स. ये भर दिया सबने?
You can also give some examples here. ओके, लिख लिया? स्टार्ट करें? कौन स्टार्ट कर रहा है? Women's leadership required because to encourage women's encourage a women's in a society's perspective. So it is essential to improvise the women's ability to lead the group, because we have to set an example on the basis of that the women can do a better things. There is a lot of examples. For example, if we are talking about in the phases of empathy, Mother Teresa is the best example. And being a woman, if we looking at a woman as a leader, she is more empathize than other men's, because nowadays in corporate sector there are the women's also working, so she can understand the better situations of a women's or the subordinate women's rather than the men. And third things to because women are also more courageous than men. We literally feel say men are more courageous, but there is a set of examples like Indira Gandhi. She is more courageous leader than others as comparative to men's leaders. So that's it. Any other viewpoint? तुम दोनों साथ ही बैठ जाओ ना. I would like to say definitely there will be equality and there will be no unbiasedness of the genders. Like
especially when there will be suppose more male members or there will be no female member in the board, then definitely the woman will also feel hesitant, right? And on the contrary part, if there will be more female leaders and no men or less men, then I think so inclusion of both is compulsory. And second thing I would say, there are several families who do not want their women or girls from their home to be a part of the corporate life. So this will also help them to secure a job, and this will also motivate other families and people that they can now women are also secure in corporate life and in everything, so they can promote it. And there will be next point is there will be less or no dominance of the males or females, everything I'm just talking about both male and female. So and might be there are some decisions when they take it together, might be there will be no chances of you can say unbiasedness. So that is what I just want to say. Thank you. Women follow transformational leadership style. He can she can encourage others really well and understand the perspective, not only women's perspective. She can understand the men's one as well. And I think why, I don't know why people always connect women leadership, women in corporate in a gender basis. It's something more above that ki she's an overall person, that she can understand people, she can understand the corporate world really well, she can handle a house, and she can handle her Multiple work. tasks at the same time. Because it happens in some places, right? That the women are not given. We usually talk about gender biasness and everything because it happens. Might be now it does not happen that too much, not to that much extent, but earlier we are talking about it used to happen, and now also just to eradicate it, right? So that is the point that we are talking about it. I don't think so कि कोई place है that there is no place left जहाँ पे it is not happening. It happens everywhere, and might be there are some places where it happens less, but it happens. Still it is there, no? It doesn't matter in small or in big things, right? Matlab, so I think so that is the reason. Definitely we all know that given women handle all the things, more correctly as compared to men. They know it how to handle with their family, how to manage their family, their work balance. They are more accurate than definitely the men as compared to. So that is why we talk about it. Men, any negative about it? Negative. Ma'am, we found Also support their family. That's this is the problem. Ma'am, Okay. about the women's, actually what we found, there are more emotional and feeling decision makers. Okay. As per MBIT test that I studied from different personality, I found majority of women's having introverts type of personality, and they're more of than mediocre. There is a personality type mediocre. So they have a more decision making from through the feelings also. So this is a negative aspects. And in our country also there is a few organization in a particular field where the women are not supposed to serve as a leader or not as a subordinate. There are the different organizations, so we have to be, because everywhere we can't put a women in front of it. We can put up them in every of the field, but few places where we can't afford them to be a part of that organization. Like, ma'am, if we talking about in especially no, it's banks may it's okay. If you're talking about then is raw defense and all, defense and services. No, there are the women's, but they're in the core, not the infantries. That's why in organization they're serving, but they're not serve as. Because of the physical differences that they have. No, there's a physical differences which is okay. Lot of women's that I met in when I pursuing para SF course in the Agra. So women's also doing para courses, not as a para courses for core area, but they are more physical competent
But whatever we think, we can't put a women in front of the LOC, because there is a more riskier. If men got caught, so it is okay, we can afford it. But if a woman we got emotionally, and whatever I want to say, everyone got to understand what level of torture she can have to face. So that we radically, that is not possible. So that's why this is the main perspective, psychological. This is the reason, because we don't want any of our mother sisters to go and to be fair. जब आप विमेन से होते हैं ना, हम लोगों के साथ में टॉर्चर सबके साथ बराबर होता है, कोई भी नहीं छोड़ता है, हम किसी को पकड़ते हैं, हम भी किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन Because of the men's psychology, women suffer under. That's what I'm trying to say. हाँ वो हो सकता है, ये बहुत इंटरेस्ट लेवल हो सकती है। हमारे पास में एग्जांपल है इजराइली वुमेन से, फाइट करके वो इजराइली वुमेन से बहुत कंट्रीज में कोई इजराइली, बट उनका जो नेबरी कंट्रीज हैं, उनका ये हुआ है ना, उससे प्लेन डेजर्ट, एंड वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर एरियाज। ये सब हमारे पास वुमेन है जो एलिस मतलब अपने बॉर्डर से दूरी देती, बट दे आर जस्ट नॉर्मली पेट्रोल एंड नॉट हैव कॉम्बैट रोल्स। तो वो एक ओके, तो आम तौर की बात करें तो ऑफ कोर्स वहाँ पे वुमेन आर जनरली नॉट प्रेफर्ड इन द इन्फेंट्री साइड बिकॉज ऑफ द हार्श कंडीशंस, बिकॉज ऑफ लाइक मे बी उस टाइम पे सी वुमेन आर सीन एज रिसोर्स वेयर दे कैन, right? So losing a resource like that over there in huge numbers won't be right for any nation, right? So जब भी evacuation programs भी होते हैं तो होते हैं बच्चे और औरतें पहले, right? आप कोई भी what do we say, कोई भी क्लैन देख लो आप, वो एनिमल क्लैन्स वगैरह जो भी होते हैं उन सब में फीमेल काउंटर पार्ट इज़ मोर वैल्यूड, राइट? ह्यूमंस वाले पार्ट में आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट, राइट? अब सिचुएशन ऑफ कोर्स काफ़ी चेंज हो रही हैं, राइट? बट पहले जो भी बाकी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वुमेन फीमेल काउंटर पार्ट इज़ मोर वैल्यूड, राइट? ओके, coming back to this women leadership of course we are not saying कि यहाँ पे entirely women leading firm हम बनाएंगे, हम बोल रहे हैं कि there will be a combination of both, combination so that there is a combination of decision from all aspects. सिर्फ और सिर्फ इतने भी practical decision नहीं ले लेने हैं कि आप उसकी emotional side देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ emotional decision भी नहीं ले लेने हैं कि आप practicality नहीं देख रहे हो. Of course we have seen both कि men are also, some men are also emotional, some women are also very practical and logical, right? But why do we need to discuss this? ये हम कर ही क्यों रहे हैं? क्या ये embedded नहीं होना चाहिए कि दोनों जेंडर ही तो हैं, दोनों को इक्वल ही राइट मिलना चाहिए? As she also said कि अभी ये चेंजेस आ रहे हैं and from the background that we and you come from, हमें कोई डिफरेंस नहीं लगता. बट कमिंग एट द बेसिक टीयर 3 एंड विलेजेस वगैरह साइड में जाओगे, वहाँ पे अभी भी यही सिस्टम होता है कि वुमेन नहीं, ज़्यादा नहीं. मैम आप नॉर्थ इंडिया में सिर्फ अपना ये एनसीआर जोन से ऊपर ऊपर छोड़ दीजिए, आप नीचे जाइए सब जगह ही, साउथ में थोड़ा बहुत आपको केरला इज केरला एंड कर्नाटका इज क्वाइट ओके, बट स्टिल इन तमिलनाडु स्टिल लैगिंग बिहाइंड एंड आंध्रा एंड योर सबसे रोस्ट एग्जांपल, मैं किसी नाम नोटिफाई एनी स्टेट, सबसे रोस्ट एग्जांपल है एमपी एंड बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे वुमेन्स को कभी प्रमोट किया ही नहीं जाता स्कूल जाने के लिए. बट नॉर्थ ईस्ट में वुमेन्स की डोमिनेंस थोड़ी ज़्यादा है. हाँ, यस यस, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल है. The few states just like Manipur, Mizoram, Yes. Nagaland, these three states give more. वहाँ पे दे आर द ट्रेडर्स, दे आर द बिजनेस वुमेन, दे आर एवरीथिंग जो घर चला रहे हैं. एंड मे बी बिकॉज वहाँ पे जो मेल काउंटर पार्ट है दैट इज़ बिकमिंग एडिक्ट, राइट? तो वुमेन के पास और कोई ऑप्शन है नहीं वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग देयर फैमिली बाय डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन. सिचुएशनल नीड्स हैं वो वहाँ पे. ओके,
तो वाई डू यू वॉन्ट टू डिस्कस दिस, क्योंकि ये नीड है. अब यू हैव टू गिव वुमेन equal weightage and contribution in the higher authorities also, higher level also. अगर नहीं दिया तो गांव में जो बच्ची बैठी है वो किसको देख के बोलेगी मुझे इसके जैसा बनना है. हाँ, तो there will be no example for her to follow. Okay, चलो ठीक है. Any other point? No? Okay.